Power Connect means connecting with powerful people. Why? Let's hear to his journey. We have Mr. Gaurav Sharma, who is the founder and CEO of Get Gabs. What is it? Gaurav, Get Gabs, मतलब क्या लेके जाना है? WhatsApp had 10 million downloads and users who are using WhatsApp on daily basis. हो सकता है कि उनका पास्ट लाइफ में सही नहीं चला होगा, but they can work hard and अभी भी खुद को बिल्ड कर सकते हैं. Absolutely. वो कहते हैं ना, where there is a will, there is a way. Welcome to Power Connect with Kavita. Power Connect means connecting with powerful people. And today we have an entrepreneur who is powerful. Why? Let's hear to his journey. We have Mr. Gaurav Sharma, who is the founder and CEO of Get Gabs. Hello? That name sounds this generation. What is it? Gaurav, Get Gabs, मतलब क्या लेके जाना है? Gabs मतलब क्या? First of all, I would like to thank you to invite me here, and it's such a wonderful thing that the person like you, won a lot of awards like Greece World Book and all. Even nowadays, a person from Jaipur who is building a WhatsApp automation platform. Thank you so much, Kavita. वेलकम मैंने आपका नहीं किया, क्योंकि आपके वेलकम से पहले मैं गेट गैब्स का वेलकम करना चाहती. सो आई वांट टू नो व्हाट इज दिस गेट गैब्स. गेट गैब्स, इट्स सो इंटरेस्टिंग. So what happened? In 2024, we already built the product. The WhatsApp product was built. Then we're thinking about a name. App की क्या name इसका रखा जाए? So Gab means chatting. Absolutely. We call it gift of gab. Being an English educator, gab means जब आपके पास वक्ता शक्ति है. So that's exactly what, but I wanted to hear it from you, and that is so good. Yeah, absolutely. Gift of Gab is a new thing for me as well. Okay. So that's how Get Gabs come to the picture as a name. And you see that in all businesses, Correct. 90% role is conversation, whether it is in-house, whether it is the outside, sales, marketing. So communication plays the biggest role in any organization. Absolutely. I would like to really appreciate this thought that goes behind it. That communication is really something which is paramount to our human survival as well. Yes, apart from the growth and the thriving factor. But yes, this is it. Absolutely. Point taker. So you see that in when I was in college in 2010, WhatsApp was launched. And we usually used to say, WhatsApp पे SMS कर देता हूँ. So SMS. WhatsApp se that is good to eat. That time SMS had a cost. Per message had a cost. The WhatsApp was free. However, internet was too had a price that time. Not like today कि internet बहुत cheap है. That's why we see the growth in this tech world. So that time WhatsApp had a like around. वैसे ये बात मैं दोहरा रही हूँ, पर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. WhatsApp पे SMS कर देगा. This is interesting. Yeah, seriously. Now everybody is saying WhatsApp me. WhatsApp. And that's a synonym of messaging. So that time in 2010, WhatsApp had 10 million downloads. In 2025, WhatsApp is having 3 billion downloads. 3 billion down. And users who are using WhatsApp on daily basis. Appreciated. Yeah. So businesses have a great conversational tool on WhatsApp because 3 billion people are using it. Absolutely. So I really would like to now welcome Mr. Gaurav Sharma, the CEO and the founder of Get Gabs. So do you want to get your gab? Yeah. Do you want to get yourself seen? Communication is the most powerful tool and is a necessity. Be it humans or animals or any organism, everybody communicates their own way. So, even dolphins communicate in their own way. The
It's so amazing. And in today's time, networks, communication, business, entrepreneurship, incubators, angel investors, these are the buzzwords. I completely agree. So I would like to thank you so much, Gaurav, for bringing in such a powerful tool. And as I know you कि आपने जो बीटेक की पढ़ाई की है, तो पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, राइट? एंड पढ़ाई हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, लेकिन उसका आपने इतना सदुपयोग किया है कि मुझे लगता है दैट हैट्स ऑफ टू यू. एंड आई वुड रियली गिव दिस लवली मैसेज आउट टू ऑल ऑफ यू. आपके अंदर कोई क्षमता है कि आपने जो भी हासिल किया है पढ़ाई के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, वो सारी चीजों को आप किस तरीके से यूज करके और उससे आप कुछ ना कुछ एक अच्छा समाज के लिए, अपने लिए काम कर सकते हैं. जैसे गौरव जी ने एक ऐप डेवलप किया, एक प्रोडक्ट डेवलप किया, जिससे आज वो अपना सर भी ऊंचा कर रहे हैं एंड समाज के लिए भी, यू नो, वी आर डूइंग समथिंग दैट इज ग्रेट एंड यूजफुल. A man with deep values. I've seen you being incredibly honest in your daily transactions, in your thought process, in what you're delivering. When we were talking, you told to me a very beautiful philosophy. Everything travels from top to bottom. Tell me a little more about that. We see that people can learn craft. कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, स्किल्स आप सिखा सकते हो. जो वैल्यूज है दे ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. somebody told me one day कि if senior people are doing cheating, if senior people are doing certain things, Yes. maybe cheating, maybe they are very honest, that flows from till bottom with more power. Yes. Like आप ऐसा समझो कि अगर वहाँ पे 1 रुपए का कुछ करप्शन हो रहा है तो बॉटम में 100 रुपीज का हो जाता है. Serious. और अगर वहाँ पे अगर ऑनेस्टी या जो वैल्यूज है अगर 1% है तो बॉटम में 50% तक हो जाता है. और एंड ऑफ द डे तो जो आपकी वॉइस ऑफ कंपनी है, वॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो वो लोग हैं जो उसका एक्सिक्यूट कर रहे हैं. Very well said. Very well said. And this is such a beautiful thought. आपको क्या लगता है कि इतना पुख्ता वैल्यू सिस्टम आप में आया कहाँ से? I think first of all from my parents. My father is like a man of words. Yeah, very honest in their whole lifetime. He did lot of work. Where all did he work? Like he worked in Hindustan Ink, KLJ, Kalpana, out of companies, and he used to be the like second person of the company. So like On the night, yes. Even few days his owners are sitting in Kolkata, and they are in the whole company. And I see that in Daman, lot of big companies like they are into 1000 CR, 500 CR, they are still following their SOPs. So मतलब जो आपके पापा ने उस जमाने में, तो कुछ कहूंगी आज से 30, 35, 40 साल पहले जो एक SOPs ले डाउन किए, जबकि वो एक कोई बहुत बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं थे, एक बहुत अच्छी शिक्षा होने के साथ साथ कभी कभी हमें लगता है कि शायद हम कुछ ज्यादा SOP सीख लेंगे अगर हम कुछ स्पेशल जगहों पे जाएंगे. आपको क्या लगता है उनमें ऐसा वो क्या था, वो क्या स्पिरिट था जो कि वो उस तरीके का एक विजन लेके आ सके कि ये SOPs होने चाहिए, इस तरीके से हमें डिलीवर करना है, ये हमारे कस्टमर्स तक चीज पहुंचनी चाहिए? वो क्या था? व्हाट वाज दैट स्पिरिट? आप देखते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के लोग होते हैं. 80-20 का जो रेशियो है, कुछ लोग ट्रांजेक्शनल होते हैं, कुछ वेल कनेक्टेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से. ही वाज ऑलवेज वेल कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन. वेरी वेल. उनको ऐसा लगता था कि मेरी कंपनी है. बहुत बड़ी बात आपने ये कही है, बहुत बड़ी बात. और व्हेन आई वाज इन जॉब आई यूज्ड टू वर्क लाइक 3 till 3 AM 2 AM. वाओ. और नथिंग कि मेरे को कोई रिकॉग्निशन चाहिए या कुछ और चाहिए, कि अब लर्न की काम के लिए काम करते हैं, तो उसी प्रोसेस से हम भी लिख जाएगी काम के लिए दाम दरो आप. तो ये बहुत खूबसूरत
सोच के साथ साथ विचार है और आपने तो इसको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उतारा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो और कैसे इसने आपको ग्रोथ में हेल्प किया है, ना केवल अपनी कंपनी के लिए लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल, अपनी करियर लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, शायद स्पिरिचुअल लाइफ में भी इसने आपको कहीं मदद किया सकता है। देखो कोई भी जब एक प्रोडक्ट बिल्ड होता है तो उसमें बहुत सारे नो कहने होते हैं हमें। तो आपको जब ये पता होता है कि कितने नो बोलने हैं, ज़्यादा थोड़े से यस होते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट बनता है एक सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का लेके। और अगर आपने किसी एक अच्छी प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन बना दिया तो यू हैव ऑलरेडी बिल्ड अ $1 million कंपनी एटलीस्ट मीडिया। सो दिस इज फॉर दिस जनरेशन एंड फॉर ऑल ऑफ अस। $1 million कंपनी बनाने के लिए क्या करना है, इसी के लिए कविता आपको पावर कनेक्ट करती है ऐसे लोगों के साथ जो अपनी फील्ड्स में पावरफुल हैं, जिन्होंने पावरफुल सॉल्यूशंस ड्राइव किए हैं, जिन्होंने पावरफुल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सो दिस इज योर चांस टू टेक योर टेक अवे एंड सी हाउ कैन यू बी द पावरफुल पर्सन। सो वेल, प्लीज सच। सो दैट्स वाई कि अब आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ। यू लव टू वर्क, दैट्स व्हाई यू आर वर्किंग। इफ यू डोंट लव, डोंट वर्क। So there were very nice saying, which says, either do what you love or start loving what you do. So this is also one thing, क्या आप उसमें इतना मग्न हो जाते हैं, इतना डेडिकेट हो जाते हैं, इतना फोकस हो जाते हैं कि आपका बेस्ट पोटेंशियल निकलता ही निकल। और चाकी दाम ने बड़ा एक फेमस डायलॉग आजकल हम सब रील्स में देखते हैं कि काम 19 चलेगा, आई में 21 चाहिए। तो वैल्यूज सही और बहुत इम्पोर्टेंट है। स्किल सेट सिखाए जा सकते हैं, वैल्यूज नहीं सिखा सकते। हाँ, मैं ये कहूँगी कि क्योंकि साइकोलॉजी मेरा माइनर रहा है और इंग्लिश लिटरेचर मेजर, वैल्यूज सिखा तो आप सकते हैं लेकिन वैल्यूज सीखने और सिखाने का एक वक्त होता है। और जब से बच्चा माँ के दर्द में आया है से लेकर फर्स्ट 10 years और उसमें भी फर्स्ट 5 years बहुत ज्यादा इसका महत्व है। चाहे हम साइकोलॉजी में ये रही, चाहे हम वेदांत में ले, चाहे आपने ये प्रैक्टिकली भी महसूस किया होगा। तो यस, एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, एज रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, मुझे लगता है कि हमें इस 0 to 5 का खास करके बहुत ज्यादा रोल जो है समझते हुए इसको बहुत खूबसूरती से लिखा। मैं कल ही जबरों में बात कर रहा था किसी से, ओके, तो उसने मेरे से पूछा कि सर ये जो बड़े सोचने की जो क्षमता है जी, एक हर इंसान एक अलग तरीके से सोच रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं, तो आपके बारे में क्या सोचते हो? मैंने कहा मैं यार हम है ना, मतलब हम पेड़ की तरह बढ़ते हैं, हम लोग ऐसे पक्षियों की तरह नहीं बढ़ते कि हम एकदम से उड़ना सीख के, क्या नहीं, और जड़ों से हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। आपने बहुत सही बोला अभी कि जो 0 to 5 years की एज है उसमें आप बहुत कुछ बिल्ड हो जाता है आपके आने वाले टाइम में, कैसे आप जीवेगा आगे। फिर आपका प्रेम शक्ति का बड़ा रोल है, आपने कैसे दोस्त बताई, बट कैसे वो दोस्त मिलेंगे वो भी वो 0 to 5 में सेट हो जाता है। बिल्कुल सही। इसलिए हम कहते हैं कि नेचर एंड नर्चर, यानी एन इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर तो हो गया आपको जो जीन पूल मिला है, और नर्चर हो गया ये जो आपके दोस्त हैं, जो आपका एजुकेशन है, जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने समाज से, अपनी कंट्री से, दुनिया से, और उसका आधार रखा गया वो 0 to 5 में। तो आपने सुना होगा कि वेदों में भी ये कहा है कि जब माता गर्भवती होती हैं तो गर्भ संस्कार डाले जाते हैं। 1 month पे कुछ है, 2 months पे कुछ है। मतलब इतना ब्यूटीफुल है हमारा इंडियन सिस्टम कि फॉरेन में भी ये चीजें हैं, लेकिन इतना गर्व महसूस होता है देखते हुए कि हमारे वेदों में, हमारे पुरातनतम शिक्षा में ये सब ऑलरेडी है, इट्स ऑलरेडी देयर।
तो गुरुकुल में वैसे मतलब कि उस टाइप से अगर प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा हो रहा है कि तो उनका होमवर्क किस टाइप से जैसे डिजाइन किया जाता था आज आपको सच बोलना है, आज आपको गुस्सा नहीं करना है, ये उपरांत किस टाइप का है दिए जाते। और नाउअडेज आई सी कि जो इंटरनेशनल बोर्ड में भी इस टाइप के बिल्कुल सर प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा बात होने लगी। प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को और दे हैव टू बिल्ड दोस प्रोजेक्ट्स अराउंड द थीम दैट हैज बीन क्यूरेटेड बाय द एजुकेशन प्रोवाइडर्स। बट एंड उसका मकसद क्या क्या? बट मैं जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 0 to 5 में बन सकते हो। मैं उन लोगों को जो भी हमारी एज में है या जो भी यंग है, हो सकता है उनका पास्ट लाइफ में सही नहीं चला होगा मे बी, बट दे कैन वर्क हार्ड एंड अभी भी खुद को बिल्ड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो अभी भी स्कोप है, सब मिलके 100% करो धार हाँ बन सकते हैं। और एक हम लोग मेरे टेक टॉक में भी मैंने ये चीज कही थी कि मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ राइजिंग ऑफ द फीनिक्स से। तो ये जो एक इमेजरी है, तो फीनिक्स एक इमेजिनरी पक्षी है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, जो एशेस से फिर से राइज करता है। तो एशेस यानी आपने उस पर्टिकुलर चीज का एक किस्म से एंड कर लिया और खत्म ही हो खत्म हो गया, और आप कैसे फिर उससे राइज वापस करते हैं। तो ये बात बहुत सुंदर आप लेके आए हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, कि ऐसा नहीं है कि 0 to 5 में अगर मौका नहीं मिला या 0 to 10 में मौका नहीं मिला तो that's the end of the story. If you have it in you, if you have that that passion, that motivation, that inspiration at any point of time, it's always there. You can do it. हो सकता है थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लग जाए, जैसे कभी कभी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते किसी क्लास में और फिर अच्छा टीचर मिल जाता है या समझ आ जाता है कि नहीं अच्छे मार्क्स लाने जरूरी है, तो हम वापस से उन कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करते हैं, मेहनत करते हैं और उसको उस लेवल से लेके जाते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी तो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करते हैं और उसी के माध्यम से हम उस चीज में आगे आते जाते हैं। एनवायरनमेंट का बड़ा रोल है कि अगर आप सही लोगों के साथ बैठे हो आप सही होने लगोगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो आपके गोल की तरफ नहीं जा रहे, तब से थोड़ा पीछे भी आने लगोगे। करेक्ट। तरबूजे को देख के खरबूजा बदर होता है नहीं, और जैसी ये संगत वैसी रंगत। तो सही लोगों के साथ बैठे हो तो उस टाइम से आप भी ग्रो करने लगते हो, और इस बात में मेरा तो बहुत ही बिलीफ है। आपका कोई पर्सनल यादगार इंसिडेंट इसको लेके? अरे मैंने तो इस पे वर्क किया है इन अ वे कि आई वाज सो इंट्रोवर्ट, और मैं अपने जॉब के टाइम पे बहुत लोगों से मिला। ओके। और जो अच्छे पावरफुल लोग मिले उनसे नहीं कनेक्ट कर पाते हैं उस जॉब के बाद। तो व्हेन आई वाज इन टैग एम्बेड इन जयपुर, सो एक टाइम ऐसा आ गया था कि वी वर एट अराउंड लाइक 60 लाख रुपीज पर मंथ रेवेन्यू आ रहा था। वेरी गुड। अब मैं सोच रहा था कि वीन जो सबको ऐसा फील हो रहा है कि आई वाज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। वाओ। सो आई वाज थिंकिंग नहीं, ये नहीं हो सकता कि आई कांट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम ऑलवेज। या सो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग टू ऑल द पीपल्स। आई वांट टू नेम few of them like अनिकेत बारकंडे, सौरभ कौशी, नितिन जोशी, सो लॉट ऑफ पीपल जो मेरी इस जर्नी में पूरे जो एक अच्छे पोजीशंस में थे। सो आई कनेक्टेड विद देम अगेन। तो मेरा रूल था कि मैं हर संडे को उनमें से किसी एक पावरफुल पर्सन से बात करूंगा और किसी एक प्रॉब्लम पे बात करूंगा। वेरी मैंने इस टाइम ऐसे हाइपोथेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने वहां पे पकड़ा कि लाइक हाउ टू अर्न 5 लाख रुपीज इन पर डे। 60 लाख पे तो आई गए थे। किसी को पूछा कि सर आपको सुकून किस में मिलता है, क्या बात है सर आपका आज तक बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, तो इस सारी कन्वर्सेशन स्टार्ट करी मैंने। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि आपने पावरफुल लोगों से बात करके इंस्पिरेशन लिया, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को सेल्फ मेंटर भी किया।
सही लोग है ना अर्जित करने पड़ते हैं, मिलते नहीं है आपको। बहुत जो संडे की ओएस में ना करी है, मैंने उनको अर्जित करा है, मैंने उसे बहुत टाइम दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आजकल या कभी कभी जिंदगी में हम ऐसा करने से क्यों चूकते? क्या हम में वो फायर नहीं होती, या हमने कभी किसी ने, जैसे आज आपने एक ये दृष्टिकोण सामने रखा, एक ये बात रखी कि अर्जित करने के लिए भी यू हैव टू वर्क हार्ड, यू नो, गेटिंग टू द राइट पीपल एंड देन मेकिंग एन एफर्ट एंड डिवोटिंग दैट टाइम एंड probably thinking and you know introspecting, learning, upskilling. तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों मिस हो रहा है, या मिस नहीं हो रहा है, गाइडेंस की कमी है, क्या महसूस हो? फोकस कहाँ है, गेम वहाँ है। मतलब मेरा जो हर स्टेप है वो क्या उस तरफ जा रहा है जहाँ मेरे को रीच करना है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं जो देख रहा हूँ और जो साथ कभी मेरे साथ भी किसी टाइम पे हुआ है, हम क्या ऐसे जाते हैं, हमें सब करना है पर जाना ऐसे है, स्टेप बाय स्टेप। So, क्या आप ये कह रहे हो कि हम बहुत सारी चीजें एक बार उठा लें? हाँ, तो हमें मतलब फोकस्ड रहना है, और जब हमें अपना गोल पता होगा तो आपको लगता है हम उसको पाने के लिए अपने रास्ते भी तय करेंगे, और उन तय करने के रास्तों में एक रास्ता ऐसे पावरफुल लोगों से कनेक्ट करने के लिए है। ये मस्ट है। तो पावर कनेक्ट विद कविता क्यों जरूरी है, आपको इसका जवाब देखिए आज ही एक इतने खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट फिर से हुआ है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट विद पावरफुल पीपल, टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ जर्नी, टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव। मैं एजुकेशन में 30 साल रही हूँ, मैंने हर प्रकार से ईश्वर ने बड़ी कृपा रखी है, लेकिन कुछ इतनी खूबसूरत बातें हमसे निकल के आ रही हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया इस जर्नी। तो वो जो आप कनेक्ट की बात कर रहे हैं, और पावरफुल मतलब I would say people who have done something in their lives, you know. So once again it is so beautiful to connect on this, and it's so nice and I'm really grateful and thankful to you कि आप अपनी लाइफ की वो गहरी इंसाइट्स बच्चों तक, हमारे दर्शक तक, हमारे लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं, जो कि आपको, जिसे कहते हैं ना कि जीरो से हीरो बनने का एक क्या जर्नी रहता है, उसमें जिसने वो पानी चखा है, जिस पर्टिकुलर वेल से जिसने जगह जगह देखा है, उसे पता है। तो आप जैसे मेंटर्स की, आप जैसे इंस्पायरिंग लोगों की डेफिनेटली समाज को पहले भी जरूरत थी और जरूरत रहे। आप जिक्र कर रहे कि आपके टीचर जो आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स इंस्पायर उन्होंने आपको किया है, पर उनका एक खास रोल था, तो मैं कुछ थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहती। जो आपके साइंस एंड मैथ्स के टीचर थे, तो हम सरदार शहर से हमने मेरी स्कूलिंग हुई, जो कि राजस्थान रूल में एक स्कूल है। सो 10th तक हमारे एक सर रहे दर साहब, और अकमल जी दर। तो उन सर का ये था कि उनके दो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट थे। एक तो कि साइंस में जितने भी चैप्टर है बहुत सारे होंगे, जो कोर्स खत्म करने में कम लगे रहते थे, और क्वालिटी एजुकेशन पर ज्यादा रहते थे, और जो उन्होंने पढ़ाया वो हमें पूरा कंडस नहीं, मतलब हृदय तक वो गया है, या वे हैव लर्न बाय हार्ट। वेरी गुड। दूसरा, उन्होंने सब में एक लीडरशिप स्पीच बहुत अच्छी से डेवलप करी, कि जैसे 70-80 स्टूडेंट्स क्लास में, तो 10th के अंदर बोर्ड एग्जाम तो उस टाइम एक अलग ही, बिल्कुल अलग ही खौफ, आज भी है, आज भी है। सो जी, उसमें उन्होंने छोटे छोटे टीम्स बना ली थी कि 10-10 लोगों की एक टीम है, सबको एक एक लीडर बना दिया, उनमें से एक पैर किताब आता। सो वहाँ पे हमें ये भी सीखा है, बहुत छोटे स्तर पे हमने सीखा कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे बिल्ड होती है, और आपको ये कहना एक खुशी मिलती है कि किसी और को पढ़ा के में। तो बेसिकली लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स कैसे टीचर्स या कैसे लीडर्स या कैसे मेंटर्स
बच्चों में या इंडिविजुअल्स में ला सकते हैं, आपने उस चीज को कुछ फील किया है? और ऐसे टीचर्स ही मतलब मान लोगों को बनाते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पीछे एक सरदार शहर में उस विजन को देना वो टीचर से ले सकते हैं। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वांट टू आई जस्ट रिमेंबर कि पहचान जरूरी है। पहचान, अच्छा मतलब वो डायलेक्ट वो वाला है, हमेशा पहचान जरूरी है। और पहचान से उनका मकसद इज लाइक व्हाट, आइडेंटिटी और नेटवर्क। आइडेंटिटी की पहचान जरूरी है, तो आइडेंटिटी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि पहचान में कुछ भी दिक्कत ना हो, तो वो कभी ट्यूशन फी नहीं लेकर दे। ओह सो स्वीट। तब्दीली सब बढ़ा रहे हैं, तो दर साहब को हम नहीं बोल सकते सलाह से वीडियो स्टूडेंट्स। सो दैट मीन्स एक तो उनको नमन, उनको शुक्रिया, और सारे टीचर्स को शुक्रिया इस माध्यम से करना चाहूंगी कि समथिंग एक टीचर जो देखा है, मेरे को तो खैर गूज़बम्स आ ही जाते हैं बीइंग अ टीचर। आई थिंक इट इज सरियल, इट इज मैजिकल, और उसमें इतनी पावर है। और सरस्वती माँ शायद कृपा भी उन्हीं पे करती है जो उनको ठीक लगता है। बट वाक्य में जब आप किसी को एम्पावर करते हैं तो कुछ एक अलग सी ही खुशी है, कुछ एक अलग सा ही सपोर्ट है। और हम लोग बहुत धन्यवादी हैं जितने भी एजुकेटर्स हैं कि हमें ये सेवा सरस्वती माँ ने और समाज ने दी, और आप सब लोगों ने ग्रहण की। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे चाहे आईआईटी में पहुंचे हैं, आईआईएम्स में पहुंचे हैं, मैमसी में पहुंचे हैं, या इवन खुद बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, या उन्होंने अपना बिजनेस में भी अपने घर के फैमिली बिजनेसेस को आगे बढ़ाया है। तो एक अजीब सा सुकून मिलता है, लगता है हाँ हमारा जीवन सार्थक हो गया। आज भी जब बच्चे हमारे टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में पहुंचते हैं, चाहे वो हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, वॉटन है, कोलंबिया है, पेंग है, तो इट्स नॉट कि बस एक उनको कुछ चाबी घुमा दी और वो पहुंच गए। आपको अपने रूबरू होना पड़ता है। आप क्या हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितने ट्रूथफुल हैं अपने गोल्स को लेके, आपका विजन क्या। यहाँ पे मैं बात लेके आऊंगी कि विजन में आप आज से गो गैप्स को, या गो गैप्स के साथ में भी और कई सारे वेंचर्स आप आगे लेके आए। आपका विजन क्या है, और 100 करोड़, 200 करोड़, 200 मिलियन, बिलियन डॉलर्स, व्हाटएवर, आज के बच्चों के लिए ये मेरे ख्याल एक बहुत ज़रूरी अहम मुद्दा है कि अंबानी जी तो हर कोई बनना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस माध्यम से, किस विजन से हम अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव कर सके। और क्या आपको लगता है कि ये एक पुख्ता तरीके से हो सकता है? इसमें ऐसा है कि विजन अगर आप बोलो कि गेट गैप्स का विजन क्या है जी, सो गेट गैप्स जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है वो है कि बिजनेसेस के कम्युनिकेशन को बेटर करना। दूसरा ये है कि उनके सेल्स जो माइंड है उसमें एक सिंगल नंबर के साथ प्रॉपर सॉल्यूशन देना, एक ब्रॉडकास्ट का सॉल्यूशन करना, प्लस एक मेटा का भी विजन है जिसके ऊपर हमने रैपिड बेस बनाई है, वो व्हाट्सएप का विजन है, अलाइन करना। तो थोड़ा सा साझा करें आप हमारे व्यूअर्स के साथ कि क्या विजन है क्या? आज की डेट में हम देखेंगे, पहले एसएमएस से स्टार्ट हुआ, फिर ईमेल पे बहुत सारा कम्युनिकेशन आया, और दोनों ही वन वे कम्युनिकेशंस थे मेजरली। हाँ, ईमेल्स 2 वे होने के बावजूद वहाँ पे ओपन रेट बहुत लो हो गया था। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके फोन में अभी एसएमएस कितने अनरीड है, ईमेल कितने अनरीड है, और व्हाट्सएप कितने अनरीड है? नंबर ये आएगा कि व्हाट्सएप जो है बहुत से कम अनरीड में है। सही कह रहे हैं। और किस और एसएमएस बहुत सारे अनरीड हो। एसएमएस तो शायद मैं देखती नहीं जब तक कोई पिन या कोई इस तरीके का एक टारगेटेड पता होता है कि देखना है, बिकॉज ये चीज इसी माध्यम से आएगी। और मेल्स, हाँ ऑफिशियल मेल्स हमेशा रहती हैं, बट आप जो कह रहे हो उस टाइप को दंग है। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है एसएमएस ईमेल टू व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पे ट्रांजिशन हुए, मतलब 2023 में मेटा ने इसको ऑफिशियल लॉन्च किया, ओपन किया सबके लिए, लोगों को बिजनेस पार्टनर में बनाया। सो ये ट्रांजिशन हो रहा है। अभी तक 5 मिलियन
यूजर्स व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेटा का डेटा ये कहता है कि इट विल बी अराउंड 50 मिलियन इन नेक्स्ट 2-3 years। 50 मिलियन। यस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बच्चे इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत अच्छी ओपनिंग है। कन्वर्सेशनल थिंग्स आर लाइक ट्रेंडिंग नाउ, और ओपन एआई सब ऐसे से आगे बढ़ रहा है। करेक्ट। तो व्हाट्सएप में भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, बिकॉज 45 मिलियन तो बिजनेसेस ऑनबोर्ड होंगे। आप आज नहीं कल नहीं 45 आपको व्हाट्सएप पे बिजनेस एपीआई आपको यूज करना होगा। माय गॉड। हाँ। तो ये हर बिजनेस के लिए मस्ट होने वाला है, स्मॉल बिट एंटरप्राइज। सही। ऑलराइट। तो आपने क्या इस पे कुछ रिसर्च भी की थी इस चीज को लागू करने से पहले, या इसके अगेंस्ट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट की मैं बात नहीं कर रही कि इसका स्कोप क्या है। हाँ, तो मतलब when in 2019 so there was a invert by Meta only, and like Make My Trip started doing ticketing करेक्ट। over there। So आप जब भी एक फ्लाइट पर टिकट बुक कर रहे हो आपकी टिकट व्हाट्सएप पे आती थी। बिल्कुल सही। दैट तो वो प्रिंट आपको लेके नहीं जाना होता था भाई एयरपोर्ट पे, तो वो एक नया था उस टाइम। मैं आई वाज वन ऑफ द पार्ट, और उस टाइम वो नेटकोर लेके आया था मेटा को। और नेटकोर इज द बिगेस्ट ईमेल सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वो को लेके आए। सो मैं उस मीटिंग में था, तब से ये आइडिया था कि दिस बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो, ये कुछ होगा इसमें। फिर जर्नी थोड़ी आगे बढ़ी, बट उस टाइम फाउंडेशन ये था कि 1 लाख रुपीज बिजनेस को पे करने होते थे जस्ट टू ऑनबोर्ड। सो एंट्री बैरियर था वहाँ पे। बट आफ्टर 2022 लास्ट मेटा ने इसको सबके लिए लॉन्च किया पब्लिकली। बिजनेस पार्टनर इसको रूट करते थे। ऑनबोर्डिंग इज फ्री नाउ। तो कोई भी एक स्मॉल बिजनेस जिसको 2 लोग एक ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रहे, दे कैन स्टार्ट व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। अरे 15 मिनट में ऑनबोर्डिंग हो जाती है। अच्छा, जस्ट 15 मिनट? जस्ट 15 मिनट। ओह वाओ। वैसे तो मुझसे ज्यादा मेरे ऑफिस टीम जो इसको हैंडल करती है उन्हें पता होगा, बट दैट्स नाइस टू नो। एंड इन टुडेस टाइम ऑफ कोर्स टाइम मैटर्स एंड थिंग्स आर लाइक सो क्विक एंड सो क्रिस्प। तो अब जैसे ऑनबोर्डिंग में बात आएंगी तो इसीलिए बिजनेस को 3 स्टेप ऑनबोर्डिंग होती है। इफ यू हैव अ वेबसाइट, यू हैव अ फेसबुक अकाउंट, और प्री अप्रूव्ड और अ बिजनेस मैनेजर वी कैन क्रिएट, और फिर आपको उसका अपना जो व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है। इन 3 स्टेप्स में आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है, और विच इज बिग ऑफ कॉस्ट और एवरीवन। इफ समबडी इज चार्जिंग यू, आई डोंट नो व्हाई, बस एज स्पीक। So that means we should be aware कि actually this is free of cost. And always use like a tool created by WhatsApp, like partners, Meta partners. Otherwise आपका नंबर ब्लॉक होने का बहुत खतरा रहता है। तो इस कब से तो ये मेटा पार्टनर्स कौन है, ये कैसे पता रखे? सो facebook.com में आप जाते हो तो वहाँ पे पार्टनर की पूरी लिस्ट है। आप उस पर क्लिक करोगे, आपको आप कहीं भी किसी भी सिटी, कंट्री, कहीं पे भी आप पार्टनर का नाम डालोगे आपको मिल जाएगा। Wow, that is so nice. Facebook.com. That is so good. So I think we, as consumers should really know this, and thank you so much for this particular information. So your vision about the product has been that it is something that is going to become a necessity, or probably has even become a necessity. And you thought of the vision that why not, get into something where the things that are going to be used as a part of daily life for career progression, for business progression, for growth, for the development of economy in so many various ways. So you thought that this was a great opportunity to be a part of it. तो मैं अगर ये कहूँ कि गौरव को इस चीज का कितना शौक था या कितना एक ड्रीम था कि एक प्रोडक्ट गौरव शर्मा बेक करे एंड उनके नाम के साथ वो एक टैग हो दैट यस यू आर द फाउंडर, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट टू यू और इज इम्पोर्टेंट टू यू? मतलब टैग से ऐसे इतना कोई पहचान का वो नहीं था। कोई पहचान दिया तो टैग से ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को को फाउंडर बनना है यार। हाँ, कुछ बिजनेस बिल्ड करना है, ये शुरू से था। मतलब अब तो हंसी आती है ये बात सोच के, लेकिन इन क्लास 2 में मेरे को वो याद आता है कि उस टाइम का पेपर्स आपके स्कूल में जब भी आपके एग्जाम होते तो पेपर्स जैसे बना के ले जाने होते थे। करेक्ट। सो
मेरे सेकंड क्लास में ऐसे कर लेते कि मैं एक नोटबुक से 10 रुपीज की आती है, उसमें मैं 5 पेपर्स निकाले और वो 10 रुपीज में सेल करूंगा। मतलब आप 5 पन्नों को 10 रुपए में बेचते थे क्योंकि वो तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गया ना कि आप घर हो रही है। करेक्ट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में एक इनेट बिजनेसमैन, एक इनेट बता रही हूँ इस टाइम में बहुत डांट पड़ी है लेकिन फिर जब आप अपने आप से पीछे से देखते हो ना, ऐसा होता है कितने डॉट्स कनेक्ट हो गए हैं, हम बनते जाते हो। मैं आफ्टर लास्ट एक इवेंट में मिला, आपसे बात हुई, आज हम वापस साथ बैठे हैं, पता नहीं आगे कितने ऐसे कनेक्शन सप्ले बिल्ड होंगे। जैसे जब आप दोबारा पीछे मुड़ के देखते हो तो कई ऐसे खराब चीजें भी आपको फिर वो सही होती हुई नजर आती है। खराब यानी जो आपको लगा उससे पापा से गर्दान थी, बट शायद उसे देखो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने तो संकेत दे दिया था that you are there to do some kind of a business and you are an entrepreneur, you know, it's just not doing business. मेरे एक TED Talk का टाइटल ही ये है The universe has larger plans. So वो वाली जो आप बात कह रहे हो उससे मैं बिल्कुल I am on the same page and संकेत हमें पढ़ने आने चाहिए, उसके लिए हमें अपने से डीप कनेक्ट और हमारी एजुकेशन, हमारा वातावरण जो हम कह रहे थे, ये सारी चीज़ों का आई विल से बहुत बड़ा था। सो गौरव एक बात मुझे बताइए, एजुकेशन आपने बीटेक में हासिल की और आपको इसने मदद किया आपकी आर्श टेक्नोलॉजी और यू नो साइंटिफिक आई विल से रिगर में। क्या लगता है, क्या आपको पता था कि आप बीटेक करके ये करोगे? हमारी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि जो मेट्रो सिटीज में जो बच्चे ग्रेजुएशन लेते हैं इनके वैसे नहीं था। ओह हाँ, मतलब व्हेन आई वाज इन जयपुर, और घर में थोड़ा ऐसे डिसाइड हो गया कि चलो इंजीनियरिंग करना है। ओके, सो वी वर इवन नॉट अवेयर कि मेरे को CS IT मैकेनिकल क्या है। ओह, सो आपको आपका जो स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन था या मेजर था वो आपको नहीं पता? हमें बस ये पता था कहीं पे कि कंप्यूटर सीखना है। कंप्यूटर सीख एंड लाइक टॉकिंग इन सेम वे, इस टाइम क्या थॉट चल रहा था। और व्हेन आई वाज इन कॉलेजेस जयपुर में, व्हेन आई वाज हंटिंग कॉलेज की मैं कहाँ एडमिशन लेना है, सो देन आई गॉट टू नो कि AI EEE होता है, RPT देना होता है। ओह माय गॉड, तो आपको यही आइडिया था कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे पहुंचने के लिए एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देखे? यू वर नॉट अवेयर? नो, आई नो ऐसा नहीं है, लिटिल बिट टू अबाउट बिट्स मिलाने की वहाँ पे इंजीनियरिंग अच्छी होती है। ओके, नॉट उसका ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, उससे ज्यादा नहीं पता बात। तो बिट्स मिलाने का कैसे पता को? मतलब वो ऐसे कि हाँ कुछ लोग मोबाइल सुनने का कि मतलब आपके आसपास या स्कूल में वैसे। ओके ओके, बट लकीली आई वुड थैंक्स टू बजरंगलाल जी सोनी फ्रॉम माय होम टाउन। ओके, सो वी वेंट टू नेशनल साइट्स फेयर। तो कौन थे वो? सो ही वाज लाइक president awardee. He built a stick for blinds. Wow, is it to That day the stick for blind people? so he was rewarded by President like type Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul. Yes, okay. And so that message was done by Intel. Okay. Yes. It's like community initiative by Government of India and Intel. Correct. So we won that award in Rajasthan. We got first. Then we went there. So due to that award, I was got placed in college. एक मिनट, ये बात जो नहीं समझ आया, आपको आपकी टीम को अवार्ड मिला नेशनल साइंस फेयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटेल, इनके कोलैबोरेशन से, इससे कॉलेज में पशु कैसे मिल सकती है? So because we don't know कि ये ट्रिपल या RPT के थ्रू रहा था। हाँ, मेरे फादर ने बोला था मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना नहीं है। अब सर ले पारी डोनेशन नहीं दूंगा, रजिस्ट्रेशन देंगे अपने दम पर। आप एक साल ड्रॉप आउट करो, अब ये कोर्सेज कर लो, लाइक ये ट्रिपल और ये सब। सो
वहाँ पे एक मैम थी प्रतिमा मैम, और सो सी न्यू कि आपने नेशनल साइंस फेयर पे यू गॉट अवार्ड देयर। ओह, तो प्रतिभा मैम कौन थे? सो प्रतिमा मैम इज अ काउंसलर इन कॉलेज। Okay, so she was the counselor in that particular college. Yes. And do He recognized me somehow on that lucky day, and I got placed. on that lucky day, yes, thank you, ma'am. Thanks to you. Yeah. And that day I realized कि लोगों को मार्केटिंग के अलावा भी एक स्टूडेंट के पास प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, अदरवाइज है ना वो डायरेक्शन लेस हो जाता है बिल्कुल सही। और उसके बहुत साल खराब हो जाते हैं, लेबर पूरा करियर खराब हो जाता है and then you get very dejected. और आप लक के भरोसे आगे बढ़ने लगते हो, ये भी हो सकता है। आज के टाइम में तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट इज अ टाइम ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन. यू नीड गाइडेंस, यू नीड मेंटरशिप, you need to explore, do your research, start your preparation well in time. पहले भी था लेकिन आज तो all the more important लोग है। करेक्ट। अभी इस टाइम पे तो मेरे ख्याल से लोगों का ऑप्शन, हमारे टाइम में था लैक ऑफ नॉलेज, कि हमें पता नहीं था। अभी मैं जो देख रहा हूँ मेरे आसपास ऑफिस में नए स्टाफ आते हैं, उनको मैं देख रहा हूँ कि दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज। तो अब तो ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है, बिल्कुल लग रहा है। नहीं, आप एक बात समझाओ, आपके पास ऑफिस में जो बच्चे आते हैं जॉब करने के लिए, उनके पास बहुत सारे चॉइसेस है, गूगल बाबा है, चैट जीपीटी हमें बहुत सारी चीजें बता देते हैं, तो उन्हें क्यों दिक्कत ये फील हो रही है? मतलब why do you they have lot of things to do? उन्हें लग रहा है कि मैं ना कभी फोटोग्राफी कर लेता हूँ, उनको भी लग रहा है कि क्या मेरा बीटेक करा है, मेरे को कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो पैशन, प्रोफेशन और हॉबी, इन सबको मिक्स कर रहे हैं? एक चीज और सोशल मीडिया, जिससे वो देख के भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है। सो बेसिकली ट्रेंडिंग थिंग्स उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं और ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है। वैसे ही शुरू से हम लोग के टाइम पे भी ये डिबेट और कंफ्यूजन रहता था कि पैशन को फॉलो करना है या प्रोफेशन के लिए कुछ अलग होना चाहिए, जबकि हम लोग एज काउंसलर्स भी टेल दैट जो आपका प्रोफेशन है वो अगर आपके पैशन का एक्सटेंशन है तो बेजोड़। पर कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता बहुत सारे चीजों के कारण, जरूरी नहीं कुछ नेगेटिव हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका पर्सनालिटी, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका वैल्यू सिस्टम, आपके करियर मोटिवेटर्स, आपका करियर इंटरेस्ट, सो हम लोग ये सब अपने असेसमेंट टूल्स के थ्रू जांचते हैं। यस, सो व्हाट इज द प्रोसेस के? सो एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग नामक टूल है और कई टाइप के साइकोमेट्रिक टेस्टिंग टूल्स हैं, लेकिन जो रिलायबल हूँ ये सब लोग नहीं जाते और सारी जगह ये टूल्स अवेलेबल। तो इन टूल्स के यूज से आप एक बच्चे या एक इंडिविजुअल का, जैसे मैं स्टूडेंट्स और मिड करियर प्रोफेशनल्स दोनों का काउंसलिंग करती हूँ, दोनों का कंसल्टेंसी लेती हूँ, तो आप उसके थ्रू उनका पर्सनालिटी, उनके इंटरेस्ट एरियाज, तो क्या होता है आपने कभी कभी देखा होगा, आपको गाना बहुत पसंद है, बहुत बच्चे लोग बहुत सुंदर गाते हैं, इंडिविजुअल सुंदर गाते हैं, but they cannot become professional singers. तो इंटरेस्ट आपका गाना है, लेकिन क्या वो वाला इंटरेस्ट आपका आपको आपके करियर या प्रोफेशनल लाइफ में रिवॉर्डिंग हो पाएगा? क्या उसका आगे स्कोप है? आपको एक चीज पसंद है, वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसका स्कोप भी होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या बाकी रेलेवेंट फैक्टर्स या जो चीजें चाहिए वो भी क्या आपके पास उपलब्ध है? वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो ट्रेनिंग, तो ये सारी चीजों को कुल मिला के गाइडेंस दी जाती है और फिर बेस्ट फिट तैयार किया जाता है, जिसमें आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आपके पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, आप 2 years में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो अपने जॉब के बाद, या जब आपने अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 5 years डाउन द लाइन कहाँ देखना चाहते हो, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। सो we guide the students, we sit with them, we brainstorm, and वो जो over bombardment of information कह रहे हो ना,
वो मेरे बच्चे टॉप 200 यूनिवर्सिटीज या जहाँ भी वो बेस्ट फिट है वहाँ क्यों पहुँच पाते हैं? क्योंकि हम उसको फनलिंग करते जाते हैं। करियर काउंसलिंग का एक ये बहुत इम्पोर्टेंट फंडामेंटल लर्निंग है और आउटकम है कि हम फनलिंग करते जाते हैं। आप जैसे मार्केटिंग में है, आप मार्केटिंग सेल्स फनलिंग कर रहे हैं, तो नहीं तो क्या है, नहीं तो बहुत कुछ है। तो उसमें अब उसके कोर्स में काम कर रहे हो, ये की हॉबी ये है, इंटरेस्ट फाइनेंसेस इतने हैं, सारी चीजें और फिर में कॉमन एरिया निकल के आता है वो क्या, बट ये डिसीजन जो डेटा ड्रिवन है, डेटा ड्रिवन डिसीजन है, एक्सपीरियंस ड्रिवन वाले टाइम पे होता तब। और टैबलेट पे होता है अभी भी लोगों बस इसका एक्सेस में हो गया, उन्हें पता नहीं होगा। हाँ, कब लोग हैं जिसको इसका पता है, पर फिर भी मैं कहूँगी अगर मुझे पहले के बदले कंपेयर करना है तो बहुत अच्छे से अवेयरनेस आई है। हम सब काउंसलर्स ने, टीचर्स ने, एजुकेटर्स ने, प्रिंसिपल्स ने मिलके इस पे बहुत काम किया। तो ये जो आज आप देख रहे हो ये हमारे 25 साल के परिश्रम, 25 के 28 भी कह ले तो कोई बुरी बात नहीं, उसका नतीजा है। And worldwide, this is big something. और अगर आपने अच्छे मतलब एजुकेटर बनाए, अच्छे इंजीनियर या अच्छे अपने आर्ट एंड हॉबीज में प्ले करने वाले लोग बनाए, तो दे विल बिल्ड अ गुड सोसाइटी, अ गुड बिजनेस एंड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। तभी तो मैंने आपको जब बात हो रही थी तो कहा कि गौरव, आप ना केवल एक ऐसे मनुष्य हैं जिनमें वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपका इंसाइट, आपका विजन, आपका अंडरस्टैंडिंग 100/100, और मैं 100 है किसी को आराम से देख ही रही हूँ, बट आई रियली अप्रिशिएट। हाँ, प्रोफेसर नहीं दे सकते हैं सारी, मेरे को वैसे तो नहीं दी पूरे नंबर, तो पर आज आप लाइफ के जिस मुकाम पे हैं, आप उसके हकदार, आप उसके हकदार हैं। एंड आई एम वेरी सो ग्लैड दैट टू अंडरस्टैंड थिंग्स टू दैट डेप्थ, एंड दैट वाज सो गुड कि आपके जैसे लोगों के नीचे जो टीम है वो एक बहुत बेहतरीन रूप से ग्रो करेगी। और ग्रोथ का मतलब जस्ट मनी नहीं है, आप प्रोफेशनली, पर्सनली हर तरीके से ग्रो करते हैं, आपका देश ग्रो करता है। वो वाली एक जो फीलिंग होती है ना, दैट आई एम डूइंग दिस एंड माई कंट्री इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। सो जैसे मैं अभी पीछे I was there at the Durham University, the Southampton University, UK. I was invited. तो वो लगता है ना कि जब हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फील्ड में इतना अच्छा काम करके, और उससे हम उनके वहाँ से भी सीख के और अपने बच्चों को यहाँ दे रहे हैं, या अपने जो भी हमारे मेंटीज हैं या टीम मेंबर्स हैं, उसका अनपैरेलल्ड फीलिंग, अनपैरेलल्ड। मतलब ये भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि लोग कुछ देंगे, कहीं ना कहीं सुकून जो मिलता है वो जिसमें तो मिलता ही है कि आपके नियर डियर इफ दे आर गेटिंग हैप्पी, करेक्ट, अभी वो ट्रेड कर रहे, दे आर गेटिंग सक्सेस, यू फील सक्सेस, तो आप भी बिजनेस का तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है इम्पैक्ट। बिल्कुल। और मेरे तो खुद के बच्चे, मतलब माय मिडिल डॉटर, माय यंगर डॉटर, माय एल्डर सन, तीनों को, बिकॉज मेरे पास करियर काउंसलिंग का बैकग्राउंड, ट्रेनिंग सब कुछ था। ऑफ कोर्स बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ टीचर, आपको और भी बहुत सारी चीजें पता रखती हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। आप इधर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, इंडिया एंड अब्रॉड में, सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन इसने मेरे तीनों बच्चों को ना केवल सक्सेसफुल बनने में मदद किया, लेकिन बेहतर मनुष्य बनने में भी मदद की। मेरे को ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने जो ये पूरा एक सिस्टम बनाया जी, इस सेफ सिस्टम के थ्रू ही आप अपने बच्चों के भी काउंसलिंग करिए। यस। और स्कूल में आज से 28 साल पहले तकरीबन we were among the very first few schools to bring psychometrics, career counseling and holistic education in place. जिसके कारण things have really, students have gotten what I wanted them to be, the best versions of themselves. मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अक्सर यूज करना चाहिए। ओके। रीजन क्या है? इसकी ज्यादा जरूरत है ना अभी गाँव में, और गाँव में जो लोग बैठे हो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं,
दैट इसकी अवेयरनेस व्हाट्सएप के थ्रू गाँव तक पहुंचाइए। सीरियसली यस, और को जरूर सही, मतलब व्हाट्सएप कैसे ही कर सकते? सिंपल है। मतलब आपकी जो एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम से व्हाट्सएप डिस्प्ले नेम आपको बुक करना है, और उसके आपकी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है या फिर गूगल एड, इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू आप उसको एक टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचा सकते हैं कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर टाउन में बात करनी है, मेरा नेक्स्ट इवेंट वहाँ करना है। और आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ की व्हाट्सएप बिकॉज दे पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप। आप डेफिनेटली एक एक्सपर्ट हैं, तो आई वुड कंप्लीटली ट्रस्ट यू ऑन दैट। तो यू थिंक दैट व्हाट्सएप कैन हेल्प इन दिस? 100%। इवन यू कैन क्रिएट अ चैट बॉट जिसमें बेसिक जो क्वेश्चंस है क्योंकि वहाँ पे नर्चर भी कर सकते हो कि करंटली आप कौन सी क्लास में, आपका इंटरेस्ट ये क्या है। ये जो पूरा असेसमेंट टेस्ट आपके में है सब चैटबॉट के थ्रू भी ले जा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, चैटबॉट के थ्रू पूरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। तो मतलब हमारा तो काम कितना आसान हो जाएगा, दैट वेयर वी डू द सॉर्टिंग, वो आप कह रहे हो कि वो AI ड्रिवन हो जाएगा। यस, और आपका काम आसान से ज्यादा आपका जो टूल है वो कितना यूजफुल है और ये हद तक पहुंचना चाहिए। अभी माँ को राजस्थान गवर्नमेंट अपने सारे जो स्किल एंड डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम है जी वो व्हाट्सएप के थ्रू लेके जा दे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पे कर चुकी है लाइक इवन आज आप देख रहे हो दिल्ली मेट्रो में जो टिकट है वो से है ऑन व्हाट्सएप नंबर, और पूरी टिकट सिस्टम आपको आप मेट्रो पे। आई थिंक आप जिक्र कर रहे हो तो मुझे याद आया कि मैं एक मीटिंग में गई थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट के, तो कुछ आपकी बात से मुझे खनक आ रही है कि हाँ ये वाली कुछ बात हो रही थी। अरे सही है, आप उसको लेके जाओ वहां तक का कि उन लोगों को इसकी बीत है, हम जैसे लोग इसके लिए वाओ। तो इसमें मतलब पॉडकास्ट के बाद गेट कैप्स हमारे लिए इसमें क्या मदद कर सकता है, इसमें हम चर्चा कर सकते हो। चलिए जाते जाते एक सवाल कि गेट कैप्स कैसे लोगों की मदद कर सकता है और किस तरीके से आप इसको एनविजन कर रहे हैं कि लोग इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, और फिर एक छोटा सा आप इसके माध्यम से और अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के माध्यम से हमारे लिए सबसे ज्यादा जो प्रिय है कम्युनिटी मेरे लिए वो स्टूडेंट्स एंड मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं जिनको लगता है कि हमें पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, क्या मतलब क्या इतनी मेहनत इसके लिए ज़रूरी है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि क्या एंट्रेंसेस थे, एंट्रेंसेस में भी इतना वेरिएशन है, आप मानेंगे नहीं कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं हो, हम लोग तकरीबन 1 लाख प्लस कोर्सेज का डेटाबेस हमारे पास होता है जी, और बेसिक चीजें तो याद रहती है लेकिन डिटेलिंग याद रह ही नहीं सकते। हमें ये पता था कि इंजीनियर, डॉक्टर और 1 लाख, मैं आपको 1 लाख बता रही हूँ, 1500 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया है ना। तो अभी भी अगर कोई जैसे कोई नया होगा तो वो सोच रहा होगा AI में कुछ कर लेते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाई ग्रो करना है कैसे। जैसे AI ने भी जो डेवलपमेंट टीम है आपने नोटिस किया होगा उसमें NLP के भी टीम के लोग चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है ना। तो NLP के लिए या साइकोलॉजी के लिए, ह्यूमन साइक अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स में से लोगों को लिया जाता है जो कि लैंग्वेज से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की हूँ तो मेरे टाइम पे मास कॉम में चले गए, टीचर बन गए या कुछ इस तरीके से। अब मेरे जैसे लोग ऐसी टीम्स में भी ऑनबोर्ड होते हैं। ये बात सही है। हम लोग AI में अक्सर ये बात करते हैं कि आप AI से इमेज बना सकते हो, आप AI से म्यूजिक बना सकते हो, पर बिलीव मी गाइस, एक डेवलपर AI से अच्छा कोड कर सकता है। बिकॉज आपको प्रॉम्प्ट क्या देना है वो तो एक वीडियो एडिटर को ही पता है, सही प्रॉम्प्ट क्या है। करेक्ट। इमेज में डालो तो उसको सही प्रॉम्प्ट देने आता है। अगर हमको वो प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं पता होगा तो आप कैसे नहीं होता है। सो तो एनहेंसिंग एवरीबॉडीज लाइफ। यस। तो आजकल वो टाइम नहीं है ना कि आप बस इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग में रहेंगे। आप एक इंजीनियर का बैकग्राउंड रखते हैं, उसकी नॉलेज रखते हैं, तो आप कई तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स AI ML being the sort of the lines, we cannot deny that it's not the future, it's happening. It's happening. So all these various qualifications and education, they are integrated at these, and how
such things can happen? What are the positions? What are the modules? बहुत मतलब if I start on तो अगले 10 से भी कम पड़ जाए, सेशन अपने को करना पड़ेगा। बिल्कुल ही करना। बट हमारे ऑफिस में जो डेवलपर्स है वो टूल यूज कर रहे हैं, बिल्कुल तो उनको उनका पोर्ट बहुत ऑप्टिमाइज रहता है। करेक्ट। तो हम लोग अभी से विंडसॉक यूज कर रहे हैं उसमें डेवलपर्स के लिए। वीडियो एडिटिंग में टैग शॉप भी यूज कर रहे हैं। यस। पूरा प्रॉम्प्ट बेस वीडियो निकल के आ जाता है। इमेजेस के हम लोग इमेजिफाई वगैरह बहुत सारे टूल इमेज अब यूज कर रहे हैं। अभी जैमा आ गया है, तो इन हाउस एआई चैटबॉट बनाने के लिए जैमा यूज करना स्टार्ट किया है। सो देयर आर लाइक लॉट ऑफ टूल्स। और हमें जैसा आपके टूल्स का हमें एक पॉइंट के बाद नहीं पता, ऐसे हमारे टूल्स का नॉर्मल लोगों को एक टाइम तक नहीं पता, इवन एजुकेटर्स को नहीं पता, क्योंकि नीश का टाइम आ गया है, सुपर स्पेशलाइजेशन पर टाइम आ गया है। एंड ऑफ कोर्स आई मीन देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि हम उसमें से किसको चूज करें, कैसे करें, एंड कैसे उस चीज को बेस्ट ऑप्टिमाइज करके बी बिकम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ अस। सो गेट गैप्स से कौन कौन लोग संपर्क करें, आप बताएं। ऑफ कोर्स कोलैबोरेशंस किस प्रकार से होती हैं आप बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड आई थिंक जो उन लोगों का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं उसको फिर एक बार रिएटरेट करूँगी कि पावर कनेक्ट विद कविता में आपको पावरफुल लोगों से मिलाया जाता है, उनकी लाइफ जर्नी, उनके करंट इंसाइट्स, उन्होंने जो लर्निंग्स ली हैं, सिर्फ पर्सनली नहीं, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, मे बी स्पिरिचुअली, मे बी ऑब्जर्वेशन से, वो सब आप तक आए ताकि आप वो पावरफुल कनेक्टेड पर्सन बन सके। सो गेट गैप्स क्या करने वाला है? Okay, so first get gaps, and I will also discuss about this is some special podcast, मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको। So get gaps में अभी आप एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट रन कर रहे हो, तो आप Amazon डार्ट मैसेज ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आप शॉपिफाई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, सिंपल हमारा एक प्लगइन बना हुआ है। अब वर्डप्रेस वेबसाइट है, वहाँ पे प्लगइन बना हुआ है। सो आज की डेट में ब्रॉडकास्ट to lakhs of people at once. You can create a chat bot. You can take payments on WhatsApp. Oh. You can create a whole holistic shop on WhatsApp, like JioMart is doing. You are running Athletic. You can do all appointment bookings on WhatsApp. So now even in it, in last week we have launched WhatsApp Forms, जिसमें drag and drop आप गूगल फॉर्म्स की तरह व्हाट्सएप पे फॉर्म पूरा बिल्ड कर लेते हो। सो व्हाट्सएप इज बिकमिंग अ होलिस्टिक सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशंस। पीपल कैन यूज इट। प्लस इफ यू आर रनिंग अ वेब एजेंसी और डिजिटल एजेंसी, you can become a partner of GetGaps as well. Oh, that's interesting. Yes. Yeah. You can earn a recurring revenue of 20% per month per client. Wow. And people are earning like 50 to 60,000 rupees per month with that. That is good. That is good. I mean, thank you so much for bringing that opportunity and letting so many people know. I will definitely ensure that I put it in my network and, people who can really make use of this. But that's so nice. You're putting it on a public platform. That's great. Even in your industry, like in education industry, a lot of schools and colleges are using it. Yeah. For attendance track. वो हम लोग कर रहे हैं। Correct. अपॉइंटमेंट्स के लिए हो जाता है जी। इनिशियल लीड नर्चर होती है उसमें हो जाता है। प्लस सेल्स टीम में एक सिंगल नंबर रख सकते हो। देयर मल्टीपल एजेंट्स बात कर रहे हैं, पेरेंट्स बात कर रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू schedule a call on GetGaps. We will definitely give you advice how you can leverage the power of WhatsApp through GetGaps. Wow. And now I just wanted to say that I have done a lot of podcasts, but आज आप में जो जिन मेरे दिल के तारों में आपने छेड़ा है, I have remembered my teachers, I have remembered my father, I have remembered my school days and my journey. It was amazing. I mean, it's been incredible working with you. You're such a wonderful soul,
एंड आई एम सो ग्लैड कि एज द ड्यूटी ऑफ अ गुरु जो मुझे सरस्वती माँ ने दी है कि मैं आपके वो तारों को छेड़ सकी, और वो डिवाइन इंटरवेंशन था जिसमें आपने अपने गुरु, अपने माता पिता जो आपके फर्स्ट गुरु हैं, उनको याद किया, अपनी जर्नी को देखा, और कैसे गुरुज, मेंटर्स और ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर को तो देखा नहीं लेकिन माता पिता में ही ईश्वर समित हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि आप इस चीज को महसूस कर पाए और इस चीज को आपने हमें कन्वे किया गया so much कि अब मैं आज जब रास्ते में वापस जा रहा हूँ मैं जयपुर, तो आई विल बी थिंकिंग लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो भी आपने उनको सबको टच कर दिया है। बिल्कुल। सो मे बी आई विल कॉल फ्यू ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स, मे बी मैंने संजय मेरे साथ है, मेरा दोस्त, वो स्कूल फ्रेंड है, उससे बहुत सारी बातें करवाऊंगा। यू नो, बेसिक कीप डूइंग दिस ग्रेट वर्क। So nice of you. I'm completely obliged, and I'm so grateful to the universe for always coming for the divine interventions. And I think soul energy जो हम कहते हैं, या simple energy भी हम कहते हैं, एक energy connect, एक positive energy बहुत द्वार खोल देती है। हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, घर पे दिया बत्ती करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, या इवन हम फ्रेंड्स को हाय हेलो व्हाट्सएप करते हैं, या हाय ब्रो हाउ आर यू डूइंग करते हैं, तो ये सब एक्चुअली एनर्जी कनेक्ट है। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी इनफ्लो का मैंने तो अपनी लाइफ में खैर 50 वर्षों में इनक्रेडिबल चीज़ें देखी ही हैं, बट आपने जो एक बहुत खूबसूरत बात कही कि कैसे वैल्यू सिस्टम, एजुकेशन, पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, नॉलेज एंड ऑफ कोर्स एआई आज के टाइम में हम नहीं भूल सकते, कैसे ये सब जब एक सिनर्जी में हो, सो कैसे एक बहुत बेहतरीन सा प्रोफेशनल, पर्सनल, सक्सेसफुल लाइफ आ सकता है। और मुझे लगता है सक्सेस सबको चाहिए, और चाहिए भी होना चाहिए, क्योंकि हैं तो हम ग्रस्त आश्रम वाले, हम कोई सेंस तो है कि और उसके लिए राह कैसे देखनी है और कैसे उस राह पे चल के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी आपका दिल कहता है जहाँ पहुँचना है, आई थिंक दैट्स व्हाट द होल इंटेंशन इज। एंड इट्स बीन सो वेरी नाइस that we've had you here. You're so inspirational, such a wonderful soul, and thank you so much for being here, and God bless you in your future endeavors. I think we need people like you. Thank you so much. Yeah. So thank you, viewers, for being with us, for sparing your precious time. Stay connected, be powerful, feel empowered, do things to be empowered. Upskill yourself, invest in yourself, understand that guru and mentors कभी कभी कड़वी बात बोल देते हैं, लेकिन मकसद वो नहीं होता. We all really appreciate you people, how well you do. We appreciate each individual. ये कहते हैं ना कि वो बहुत खूबसूरत लाइन है, तुम में रब दिखता है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान में वो रब है. और ये कोई एक सिर्फ ऐसे कहने वाली बात नहीं है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ. और मुझे लगता है कि ये चीज़ जब हर इंसान एक दूसरे में देखता है, वो एक डिवाइन एनर्जी देखता है, जिस भी रूप में देखता है, यूनिवर्स के रूप में देखता है, नेचुरल चीज़ों के रूप में देखता है, जैसे भी, जब हम उससे कनेक्ट होते हैं, हम अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होते हैं, हम अपनी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट और इंटेंट को अलाइन करते हैं, तो आप ये मुझसे लिखवा लीजिएगा कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए कोई दुनिया की ताकत बीच में नहीं आएगी. पर हाँ, इंटेंट, मैंने कहा आपका इंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए. और जैसे इस एंटरप्रेन्योर का, इस फाउंडर का इंटेंट पॉजिटिव था, तो इन्होंने सक्सेस को देखा. और आज अगर मैं कहूँ तो कई 100 मिलियन $US की बात हो रही है, और ये और भी आगे जाएंगे आने वाले वक्त में. मेरी ऐसी कामना भी है और मेरी ऐसी ब्लेसिंग भी. We are also learning. Thank you so. Thank you so much. Have a great day ahead. Bye bye. Thank you.